Hello guys, myself Vipinpreet Kaur. So as you all know, we have completed our chapter number 1, the leaf from the class 6 Selena Conquers Biology, and now we are going to start our new chapter, chapter 2, the flower from the same book Selena Conquers Biology class 6. So, if anyone arises any type of the doubt in the last chapter, chapter 1, the leaf, you can comment me in the comment section and I will clear the doubts in the doubt section video, including the both chapter number 1 and chapter number 2. Both chapters doubt is cleared in the doubt section video. Okay, so before starting our chapters, do like, share and subscribe my channel, and please turn on the bell icon to get the notification of my next chapters or parts of these chapters. Okay, so now let's move to our chapter. So first of all, there is a syllabus, means the topics that about we will learn in this chapter. Okay, so firstly read about these topics, read these topics, then we will come to our chapter. So topic number 1, parts, 4 holes, structure and function of each hole. Second, pollination, self and cross, an idea about agents of cross pollination, wind, water and insects, their examples. Third, fertilization process in simple terms. Fourth, formation of fruit, fate of each part whole of flower after fertilization. Fifth, parts of fruits, dry and fleshy, examples of dry and fleshy parts. Parts of the pericarp of fleshy fruits, epicarp, mesocarp, endocarp, and function of each part. Sixth, seed, parts, cotyledon, embryo, radicle, plumule, and types, monocot, dicot. Seventh, germination, conditions required for germination, moisture, warmth, seed germination of different seeds. So these are the topics that about we will study in this chapter. So now move to our chapter. Now, a flower is usually the most beautiful and the colorful part of a plant, which serves as the reproductive organ. So what is saying here that जो फ्लावर होता है, एक फूल होता है, वो एक पौधे का सबसे खूबसूरत, ब्यूटीफुल एंड कलरफुल, रंगीन पार्ट होता है एक पौधे का, और वो एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी होता है प्लांट का. अ फ्लावर इज़ अ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन टू ऑफ प्लांट. जो फ्लावर होता है वो एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी होता है प्लांट का. सो एक फ्लावर जो होता है प्लांट का एक रंगीन और खूबसूरत पार्ट होता है एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी होता है. So it is attached to the shoot by means of a stalk or pedicle. So ये जो होता है शूट से अटैच होता है, मतलब कि स्टॉक और पेडिकल से अटैच होता है. The tip of the stalk is enlarged and slightly flattened thalamus from where the petals and other floral parts arise. यहाँ पे बोला गया है कि जो स्टॉक का टिप होता है, अबव पार्ट होता है, वो इनलार्ज होता है और हल्का सा फ्लैट होता है, जैसे कि थैलामस, वो जहाँ से जो पेटल्स, पंखुड़ियाँ और दूसरे फ्लोरल पार्ट्स, अदर फ्लोरल पार्ट्स होते हैं, निकलते हैं, अराइज होते हैं. एग्जामिन अ फुली ओपन फ्लावर एंड नोट इट्स डिफरेंट पार्ट्स. अब आपको एक अच्छे तरीके से खिले हुए फूल को, पूरे तरीके से खिले हुए फूल को एग्जामिन करना है, देखना है, और उसके बाद उसके अलग अलग पार्ट्स को नोट करना है. यू विल ऑब्जर्व दैट ईच पार्ट इज अरेंज्ड इन सच अ वे दैट वी कॉल दैम द 4 होल्स रिंग्स ऑफ अ फ्लावर. दीज आर. सो आप क्या ऑब्जर्व करोगे, आप ये ऑब्जर्व करोगे कि हर एक पार्ट जो है एक ऐसे वे में अरेंज है कि आप उसे 4 होल्स कहोगे, 4 रिंग्स कहोगे फ्लावर की, है ना. वो आप लोग क्या ऑब्जर्व करोगे कि वो जो उसके पार्ट्स है वो इस तरीके से अरेंज है, इस वे में अरेंज है कि आप उसे 4 होल्स मीन्स 4 रिंग्स कहोगे फ्लावर की. So these are the 4 rings, 4 holes क्या है. So our 4 holes are calyx, corolla, androecium, gynoecium. So firstly we will read about the calyx. Calyx, this is the outermost hole made up of tiny green leaf-like structures called sepals. तो कैलिक्स जो होता है वो आउटर मोस्ट सबसे बाहरी परत, बाहरी होल रिंग होती है, जो कि छोटे छोटे हरी पत्तियों जैसे स्ट्रक्चर से बनी होती है, हम सेपल्स कहते हैं. Calyx is the outermost hole made up of tiny green leaf-like structure called sepals. Calyx जो होती है सबसे बाहर, मतलब कि outermost hole होती है,
ये टिनी छोटी छोटी हरी पत्तियों के जैसे स्ट्रक्चर से बनी होती है। उस स्ट्रक्चर को हम सेपल्स कहते हैं। ड्यूरिंग द बड स्टेज, जब फ्लावर जो होता है बड स्टेज पे होता है, दे इनक्लोज द इनर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। ये जो है जो फ्लावर के इनर पार्ट्स है उसको इनक्लोज रखती हैं टू प्रोवाइड नेसेसरी प्रोटेक्शन टू द ग्रोइंग पर, कि ताकि वो जो है बड ग्रो कर रहा है उसको जितनी प्रोटेक्शन चाहिए वो उतनी दे पाए। कैलेक्स क्या करता है, जब बड स्टेज पर एक फ्लावर होता है, जब एक फ्लावर बड स्टेज पे होता है वो उसके जो अंदर के इनर पार्ट्स होते हैं उसको इनक्लोज करके रखता है, ताकि उस फ्लावर को जो है उस ग्रोइंग बड को उतनी प्रोटेक्शन मिल सके कि जितनी उसे चाहिए। जितनी प्रोटेक्शन उस ग्रोइंग बड के लिए नेसेसरी है उसे उतनी मिल पाए, तभी वो जो बड स्टेज पे होता है तो उसके जो अंदर के पार्ट्स होते हैं उसको इनक्लोज करके रखता है, बंद करके रखता है। नाउ सेपल्स आर द ग्रीन आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लावर। सेपल्स जो होते हैं हरे बाहर के पार्ट होते हैं फ्लावर के, हरे रंग के सेपल्स ग्रीन कलर के होते हैं, और ये जो है बाहर का पार्ट होता है, आउटर मोस्ट पार्ट होता है फ्लावर का। नाउ सेकेंड इज कोरोला। कोरोला क्या है? कोरोला, दिस फॉर्म्स द सेकेंड इनर होल। ये सेकेंड इनर होल है। अवर कैलेक्स इज द फर्स्ट आउटर मोस्ट होल एंड दिस इज द सेकेंड इनर होल, ये दूसरे नंबर पे आती है। इट इज़ मेड अप ऑफ द स्ट्रक्चर्स कॉल्ड पेटल्स। ये किस स्ट्रक्चर से बनी होती है? ये जो है एक स्ट्रक्चर से बनी होती है जिसे हम लोग पेटल्स कहते हैं। These are usually colored और वाइट बट नेवर ग्रीन। जो पेटल्स होती है वो ज़्यादातर कलर्ड रंग बिरंगी होती हैं, और यहाँ तो वाइट होंगी बट ये ग्रीन नहीं होंगी। जो इसकी पेटल्स होती हैं वो कलर्ड, कोई भी कलर की हो सकती है, पिंक हो सकती हैं, येलो हो सकती है, ऑरेंज हो सकती है, एनी कलर, वाइट टू, बट वो ग्रीन नहीं होगी, वो ग्रीन कलर में कभी नहीं होंगी, बाकी किसी भी कलर में हो सकती है। द पेटल्स मेक द फ्लावर अट्रैक्टिव। जो पेटल्स होती हैं वो फ्लावर को अट्रैक्टिव बना देती हैं, आकर्षित बना देती हैं, जिससे कि जो इंसेक्ट्स होते हैं पॉलिनेशन के लिए भी आकर्षित अट्रैक्ट होते हैं। जो पेटल्स होती हैं फ्लावर को अट्रैक्टिव बना देती है, और उसके कारण जो इंसेक्ट्स होते हैं वो भी पॉलिनेशन के लिए उसके लिए अट्रैक्ट होते हैं। In some cases, the sepals may be absent or are refused with the petals in a flower. कुछ केसेस में जो सेपल्स होते हैं वो एब्सेंट भी होते हैं या फिर वो फ्यूज होते हैं पेटल के साथ फ्लावर में। कुछ केसेस में सेपल्स जो होते हैं वो एब्सेंट भी हो जाते हैं या फिर वो पेटल्स के साथ फ्यूज होते हैं एक फ्लावर में। Petals are the large, fragrant and brightly colored parts of the flower. So जो petals पंखुड़ियाँ होती हैं वो लार्ज, बड़ी, और फ्रैग्रेंट मीन्स खुशबूदार, और ब्राइटली कलर्ड मतलब कि ब्राइट कलर की होती हैं। ब्राइट कलर्ड पार्ट होता है फ्लावर का। क्या ब्राइटली मतलब कि चमकदार कह सकते हैं शायद ऐसे। तो वो ब्राइट कलर्ड की होती हैं, उनका कलर बहुत ब्राइट होता है, वो ब्राइट कलर्ड पार्ट होता है फ्लावर का। नाउ अवर थर्ड होल इज एंड्रोशियम। एंड्रोशियम, इट इज़ द थर्ड होल ऑफ द फ्लावर। ये जो है तीसरी होल है फ्लावर की। इनर टू द पेटल्स, ये पेटल्स के अंदर आती हैं। दिस होल इज़ मेड अप ऑफ स्टेमन्स। ये होल जो होती है स्टेमन से बनी होती हैं। Each stamen is made up of a thin thread-like filament which at its tip bears an anther. इसका जो हर एक स्टैमन होता है वो एक थिन थ्रेड-लाइक फिलामेंट से बना होता है, जिसके टिप पर जो होती है एंथर होता है। हर एक स्टैमन जो होता है वो थिन, पतले थ्रेड-लाइक स्ट्रक्चर, थ्रेड-लाइक फिलामेंट से बना होता है, जिसके टिप पर, जिसके अबव पॉइंट पर जो होता है एंथर होता है। The anther contains pollen sacs which produce a yellow powdery material consisting of pollen grains. जो एंथर होता है, एंथर में पॉलन सैक्स होते हैं, वो पॉलन सैक्स जो है एक येलो पाउडरी मटेरियल जिसमें पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं। क्या व्हाट इज सीइंग हियर, जो एंथर होता है उसमें पॉलन सैक्स होते हैं, और पॉलन सैक्स जो एक येलो पाउडरी मटेरियल को प्रोड्यूस करते हैं जिसमें एक पॉलन ग्रेन्स होते हैं। द पॉलन ग्रेन्स कंटेन द मेल गैमेट्स। जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं
जिसमें मेल गैमेट्स होते हैं, हैंस द एंड्रोशियम इज कॉल्ड द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। तो जो एंड्रोशियम है वो फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। एंड्रोशियम जो है तीसरी होल है फ्लावर की, और ये पेटल्स के अंदर होती है, उसके आगे होती है, और ये होल जो है स्टेमन से बनी होती है, और हर एक स्टेमन के पास स्टेमन जो होता है एक थिन थ्रेड लाइक फिलामेंट से बना होता है, जिसके टिप पर जो है एंथर प्रेजेंट होता है, और एक एंथर में जो होती है पॉलन सैक्स होती है, और वो पॉलन सैक्स जो है एक येलो पाउडरी मटेरियल प्रोड्यूस करती हैं जिसमें पॉलन ग्रेन्स होते हैं, एंड पॉलन ग्रेन्स में मेल गैमेट्स होते हैं, और इसके कारण जो एंड्रोशियम होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का। सो this is our androecium third hole. Androecium along with anthers and filament is the male reproductive part of a flower. Androecium जिसमें anther और filament हो वो male reproductive part होता है flower का। Now we have completed our three hole of a flower and now move to the last four hole, gynoecium. Gynoecium it is the fourth and innermost hole of the flower। ये फोर्थ और इनरमोस्ट सबसे अंदर की होल है फ्लावर की। इट इज़ मेड अप ऑफ द कार्पल और द पिस्टल। ये जो है कार्पल या पिस्टल से बनी होती है। द पिस्टल इज़ फर्दर मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स। अब पिस्टल भी 3 पार्ट से बनी होती है। स्वॉलन ओवरी एट द बेस, सबसे नीचे एक स्वॉलन ओवरी होती है। ट्यूब लाइक स्टाइल, एक ट्यूब लाइक स्टाइल होता है अराइजिंग फ्रॉम द ओवरी, जो ओवरी से अराइज हो रहा है, ओवरी से निकल रहा है, विच हैज़ एन एक्सपेंडेड स्टिग्मा टिप्स, जिसमें स्टाइल के ऊपर जो है एक एक्सपेंडेड मतलब बड़ा हुआ स्टिग्मा है उसके टिप पे। द स्टिग्मा रिसीव्स द पॉलन ग्रेन्स। स्टिग्मा जो है पॉलन ग्रेन्स को रिसीव करता है। पॉलन ग्रेन्स कहाँ से पॉलन ग्रेन्स कहाँ से मिलते हैं? एंथर में पॉलन सैक्स होता है, और पॉलन सैक्स एक येलो पाउडरी मटेरियल प्रोड्यूस करते हैं जिसमें पॉलन ग्रेन्स होते हैं, और वही पॉलन ग्रेन्स एंथर वही पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा रिसीव करता है। द स्टाइल ट्रांसफर्स द मेल गैमेट्स ऑफ द पॉलन ग्रेन्स इनटू द ओवरी। जो स्टाइल होता है वो स्टाइल मैंने क्या बताया, एक स्वॉलन ओवरी होती है। लिसन इट क्लियरली, इट्स सम कंफ्यूजिंग फॉर यू। देखो, ये जो है जाइनोशियम जो दो चीज़ों से बना होता है, कार्पल या पिस्टल से, और पिस्टल भी 3 से बनी होती है। फर्स्ट इज़ ओवरी, सेकेंड इज स्टाइल, थर्ड इज स्टिग्मा। एक स्वॉलन ओवरी सबसे बेस पे होती है। स्वॉलन मतलब कि बड़ी फुली हुई ओवरी होती है नीचे। एक ट्यूब लाइक स्टाइल होता है, ट्यूब लाइक यू नो द ट्यूब, और उसी तरीके का स्टाइल होता है जो कि ओवरी से निकल रहा होता है, वो इससे ग्रो कर रहा होता है। उसके जो स्टाइल होता है उसमें उसके ऊपर टिप पे जो एक स्टिग्मा, एक्सपेंडेड स्टिग्मा होता है। ओके, और वही स्टिग्मा जो पॉलन ग्रेन्स किससे देखो, एंथर के पास पॉलन सैक्स होते हैं, और वो पॉलन सैक्स जो है एक येलो पाउडर मटेरियल का प्रोड्यूस करता है, और उसी में एक पॉलन ग्रेन्स होते हैं, और वही पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा रिसीव करता है। एंड्रोशियम जो पॉलन ग्रेन्स कैसे कर रहा है, एंड्रोशियम में देखो एंथर होता है, एंथर में पॉलन सैक्स होते हैं। पॉलन सैक्स जो है एक येलो पाउडरी मटेरियल प्रोड्यूस करता है, और उसके अंदर पॉलन ग्रेन्स होते हैं। वही पॉलन ग्रेन्स कौन रिसीव करता है? जाइनोशियम का स्टिग्मा रिसीव करता है। उसके बाद द स्टाइल ट्रांसफर्स द मेल गैमेट्स ऑफ द पॉलन ग्रेन्स इनटू द ओवरी। जो स्टाइल होता है, मैंने सेकेंड पार्ट बताया ना, पिस्टल का सेकेंड पार्ट स्टाइल, वही जो है जो पॉलन ग्रेन्स में मेल गैमेट्स होते हैं वो उसको ट्रांसफ़र करता है ओवरी में। ओवरी में मतलब कि जो सबसे बेस पर सबसे नीचे ओवरी है, सबसे ऊपर है स्टिग्मा, उसके बाद स्टाइल। तो वो जो स्टाइल है जो पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा में रिसीव हुए, उसके बाद उन पॉलन ग्रेन्स में जो भी मेल गैमेट्स थे, जो भी हमने एंड्रोशियम में पढ़ा ना, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट था, तो वो जो येलो पाउडरी मटेरियल होता है वो एक क्या प्रोड्यूस करता है, वो पॉलन ग्रेन्स को प्रोड्यूस करता है, एंड पॉलन ग्रेन्स में मेल गैमेट्स होते हैं। ऑलराइट, तो वही यहाँ पे बोला गया है कि जो स्टाइल है, फर्स्ट ऑफ ऑल पॉलन ग्रेन्स कौन रिसीव करेगा? स्टिग्मा रिसीव करेगा, और उसके बाद जो पॉलन ग्रेन्स हैं, वो पॉलन ग्रेन्स में जो भी मेल गैमेट्स प्रेजेंट हैं वो ओवरी तक कौन ट्रांसफ़र करेगा? स्टाइल ट्रांसफ़र करेगा। जो स्वॉलन ओवरी एट द बेस थी उसमें
स्टाइल के द्वारा वो ट्रांसफ़र किए जाएंगे। द ओवरी कंटेन्स स्मॉल राउंडेड बॉडीज कॉल्ड दी ओव्यूल्स। और ओवरी में अब छोटे छोटे राउंडेड बॉडीज हैं जिन्हें हम ओव्यूल्स कहते हैं, विच कंटेन द फीमेल गैमेट, जिसमें फीमेल गैमेट होती हैं। फॉर दिस रीज़न द जाइनोशियम, इस रीज़न के कारण जो जाइनोशियम है उसे हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहते हैं फ्लावर का। आई होप यू अंडरस्टैंड। इफ एनीवन arises in both these topics doubt, you can comment me, I will clear it. Okay, so क्या बोला गया, जाइनोशियम फोर्थ इनरमोस्ट होल थी फ्लावर की, और उसके बाद ये कैरपल और पिस्टल से बनी हुई थी। और पिस्टल भी 3 चीज़ों से बनी हुई थी, स्वॉलन ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा। और जो स्टिग्मा होता है, जो पॉलन ग्रेन्स, उससे पॉलन ग्रेन्स कहाँ से रिसीव करता है, जो एंथर होता है वो पॉलन सैक्स को होते हैं उसमें, वो पॉलन सैक्स जो है पाउडरी येलो पाउडरी मटेरियल को प्रोड्यूस करता है, और उसमें पॉलन ग्रेन्स होते हैं। वही पॉलन ग्रेन्स जो है स्टिग्मा रिसीव करता है जाइनोशियम का, और वो स्टिग्मा के बाद स्टाइल आता है, और वो स्टाइल जो है पॉलन ग्रेन्स में जो भी मेल गैमेट प्रेजेंट होते हैं उसको ओवरी तक ट्रांसफ़र करता है। उसके बाद ओवरी में एक छोटी छोटी राउंडेड बॉडीज़ होती है जिसे हम ओव्यूल्स कहते हैं, और जिसमें ओव्यूल्स में जो है फीमेल गैमेट प्रेजेंट होते हैं। इसी कारण से, रीज़न से हम जाइनोशियम को फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहते हैं फ्लावर का। जाइनोशियम मेड अप ऑफ कार्पल और पिस्टल इज़ द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर। जाइनोशियम जो है कार्पल और पिस्टल से बना होता है, और ये 2 फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर के। Now, if all the above 4 holes, calyx, corolla, androecium and gynoecium are present in the same flower, it is a complete or bisexual flower. अगर सारे जो भी हम लोगों ने 4 होल्स पढ़े हैं फ्लावर के, कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और जाइनोशियम प्रेजेंट है एक फ्लावर में, अगर ये चारों होल्स प्रेजेंट है तो फिर हम उसे एक कंप्लीट और बाइसेक्सुअल फ्लावर कहेंगे। अगर जो हमने ऊपर जितने भी हमने 4 होल्स पढ़े हैं फ्लावर के, वो चारों होल्स क्या क्या पढ़े हम लोगों ने, कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड जाइनोशियम, ये 4 होल्स हम लोगों ने पढ़े हैं। अगर ये एक ही फ्लावर में सभी प्रेजेंट हैं तो हम उसे एक कंप्लीट और बाइसेक्सुअल फ्लावर कहेंगे। ओके, नाउ however, if any one of the 4 holes is missing from a flower, the flower is said to be incomplete. अगर इन चारों होल से कोई एक भी होल एक फ्लावर में एब्सेंट होता है, मिसिंग होता है, तो उसे हम इनकम्प्लीट फ्लावर कहेंगे। जिसमें ये चारों होल से एक फ्लावर में अगर ये चारों होल्स प्रेजेंट है तो हम उसे कंप्लीट और बाइसेक्सुअल फ्लावर कहेंगे। अगर किसी फ्लावर में एक भी होल एब्सेंट है, चारों होल्स में से एक भी होल एब्सेंट है, मिसिंग है, तो उसे हम इनकम्प्लीट फ्लावर कहेंगे। ओके, सो नाउ टाइप ऑफ फ्लावर्स, फ्लावर्स के टाइप्स क्या है। डिपेंडिंग ऑन द प्रेजेंस ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, फ्लावर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, बाइसेक्सुअल एंड यूनिसेक्सुअल। मतलब कि हम अगर मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की प्रेजेंस में बात करें तो फ्लावर्स को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज़ बाइसेक्सुअल एंड यूनिसेक्सुअल। ओके, सो फर्स्ट इज बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या होते हैं। सम प्लांट्स हैव फ्लावर्स विद बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, दैट इज एंड्रोशियम एंड जाइनोशियम, दे आर कॉल्ड बाइसेक्सुअल एंड हेर्माफ्रोडाइट फ्लावर्स। सो इसमें क्या बोला गया है, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स क्या होते हैं, कुछ प्लांट्स जिसमें फ्लावर्स जो फ्लावर्स हैं उनमें दोनों ही मेल एंड फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, जो कि एंड्रोशियम एंड जाइनोशियम। एंड्रोशियम इज़ अ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड जाइनोशियम इज़ अ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अगर एक प्लांट के फ्लावर में ये दोनों पार्ट्स प्रेजेंट हैं तो उसे हम बाइसेक्सुअल या हेर्माफ्रोडाइट फ्लावर कहेंगे। Now second, unisexual flower. In certain flowers, either the male androecium or female gynoecium reproductive parts are found. They are called unisexual flower. So what is saying here? कुछ फ्लावर्स यहाँ जिनमें या तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मतलब कि जाइनोशियम प्रेजेंट है या मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड्रोशियम प्रेजेंट है, तो उसे हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स कहेंगे। Okay, now function of a flower. Okay,
फंक्शन ऑफ अ फ्लावर, द फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट। फ्लावर जो होता है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है प्लांट का। वी स्टडी इट अर्ली। इट्स मेन फंक्शन इज़ टू प्रोड्यूस सीड्स एंड फ्रूट। इसका मेन फंक्शन, फ्लावर का मेन फंक्शन होता है सीड को या फिर फ्रूट को प्रोड्यूस करने का इसका मेन फंक्शन होता है। द फर्स्ट स्टेप फॉर अचीविंग दिस इज़ थ्रू द ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन्स। इसका पहला स्टेप होता है कि उसको अचीव करने के लिए कैसे पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र होना एंथर से स्टिग्मा तक। इसका फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि जो पॉलन ग्रेन्स है एंथर से स्टिग्मा तक, फ्लावर के एंथर से स्टिग्मा तक ट्रांसफ़र करना, ये द फंक्शन ऑफ फ्लावर। फ्लावर क्या होता है, एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है प्लांट का, और इसका मेन फंक्शन होता है सीड और फ्रूट्स को प्रोड्यूस करना। और उसके बाद इसका पहला स्टेप क्या होता है कि जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो एक फ्लावर के एंथर से स्टिग्मा तक ट्रांसफ़र हो। दिस इज़ द फंक्शन ऑफ अ फ्लावर। ओके, सो नाउ our last topic that we read in this part is pollination. Pollination is the transfer of pollen grains from the anthers to the stigma of a flower. We have read it. Pollination जो है ट्रांसफ़र होता है, pollination में pollen grains का ट्रांसफ़र होता है एंथर से स्टिग्मा तक एक फ्लावर के। pollination में ट्रांसफ़र किसका होता है, pollen grains का ट्रांसफ़र होता है एक फ्लावर के एंथर से स्टिग्मा में। देयर आर टू टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। यहाँ पे दो टाइप्स के पॉलिनेशन है, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। फर्स्ट सेल्फ पॉलिनेशन, इट अकर्स ईदर विद अ सिंगल फ्लावर और बिटवीन फ्लावर्स ऑफ द सेम प्लांट। सेल्फ पॉलिनेशन जो होता है ये एक फ्लावर में अकर होगा या फिर एक प्लांट में जो फ्लावर्स है उन्हीं में अकर होगा। इट इज़ नॉट पॉसिबल इन दी देयर इज़ टू प्लांट्स एंड फ्रॉम द वन फ्लावर ऑफ फर्स्ट प्लांट एंड फ्रॉम टू दी सेकेंड प्लांट ऑफ फ्लावर। ओके, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि फर्स्ट प्लांट के फ्लावर से एंथर से उसके तक जा रहा है, एंथर से स्टिग्मा तक जा रहा है, तो इसमें ये पॉसिबल नहीं है। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है कि इसमें जो है या तो एक ही फ्लावर में ये हैपन होगा या फिर ये उन फ्लावर्स में होगा जो एक ही प्लांट के हैं, ये अलग अलग प्लांट के फ्लावर्स में नहीं होगा, एक ही प्लांट में होगा। Here the pollen grains from the anther falls on the stigma of either the same flower or another flower or the same part। यहाँ पे pollen grains जो है एंथर से स्टिग्मा तक फॉल होते हैं, या तो वो तो सेम फ्लावर के होंगे या फिर अनदर फ्लावर होंगे या फिर दूसरे फ्लावर्स पे होगा, बट वो होगा ही एक ही प्लांट में। ओके, नाउ सेकेंड इज क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन इट अकर्स इन फ्लावर्स ऑन डिफरेंट प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड। ये क्या होता है, अलग अलग प्लांट्स में होता है, बट अलग अलग प्लांट्स में हो जाता है, बट वो फ्लावर एक ही प्रकार के होते हैं। हेयर पॉलन ग्रेन्स आर ट्रांसफ़र फ्रॉम, यहाँ पे पॉलन ग्रेन्स कहाँ से ट्रांसफ़र होते हैं, एंथर, एक मतलब कि एक फ्लावर के एंथर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा में, दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा में ये ट्रांसफ़र होते हैं, बट वो फ्लावर एक ही काइंड का होता है। दूसरे प्लांट के फ्लावर में ट्रांसफ़र होंगे बट वो फ्लावर एक ही काइंड का होगा। सो ये तो थे पॉलिनेशन के टाइप। फर्स्ट था हमारा सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सो हियर्स वी एंड दिस वीडियो। आई होप यू ऑल understood it clearly till here. So we will run over this chapter in the next part from the topic agents of pollination. I hope you all understand it. And if anyone arises any type of doubt in the both chapters, chapter 1 and chapter 2 till there we have learned, you can comment me in the comment box and I will clear it in the doubt section video including the both chapters doubts. Okay, so I hope you all understood it. Do like, share and subscribe to get the notification and turn on the bell icon to get the notification of the others video or chapters on my channel. So bye bye. Do like, share and subscribe. Have a nice day.